if you read NCERT book, okay, in NCERT book, okay, I'll show you here. This is kinetic theory, not this one. See, here it is, deviation from ideal behavior. उसमें उन्होंने पूरा ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन के बाद, देखो ये जो ग्राफ है ना बेटा, यही ग्राफ उन्होंने स्टेट बोर्ड बुक में ड्रॉ करके फिनिश कर दिया। कंसेप्ट उधर ही है ना, उन्होंने एंड कर दिया, यही एंड कर दिया। पर हमारा जो एनसीईआरटी बुक है वो इसके आगे जाता है, आगे जाता है, और वो है ना हमें 2 क्वेश्चन पूछता है ये ग्राफ के बाद कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन रीजन, JW is also interested in reason, and then they explain this whole part. ये पूरा explanation करने के बाद they conclude that the for pressure the correction is this. पहला conclusion उनका ये है कि pressure the correction is this, okay, and for the volume the correction is this. From where they got this, क्या सोच के उन्होंने निकाला, ये आपको आज के लेक्चर में समझना है, ओके। अब पढ़ते रहोगे ना टेक्स्ट बुक तो कंफ्यूजन पे आएंगे, हम थोड़ी है ना हमारे लेमैन्स लैंग्वेज में पहले समझते हैं, ओके। क्लियर विद दिस? आज का लेक्चर इतना ही है, ओके। दिमाग लगाओ, वहां पे थोड़ा सोचो कैसे होगा क्या होगा, एंड देन विल गो फर्दर विद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके सर। या सर कल के लेक्चर में जो आपने सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए वो डेरिवेशंस भी याद रखने हैं। बेटा अगर हम 11th के एग्जाम्स में थियरी एग्जाम है, then you have to derive, you have to just remember definition, expression, and your one example, that's it. मैं सोचो मैं छोटू सा डिराइव करा था, बस उतना ही। अगर थियरी एग्जाम है, अगर बेटा आपका MCQ एग्जाम है, you just remember the last formula, like for the Boyle's law P1 V1 equal to P2 V2, for Charles law V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, for Gay-Lussac's law it is this one, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. ये बोर्ड्स में नहीं है बेटा ध्रुव, ये 11th स्टैंडर्ड का बुक है, 11th का पार्ट बोर्ड्स में नहीं आता, ओके। जस्ट वांट टू कंफर्म वन मोर थिंग, ओके, डिड वी राइट दिस और नॉट, ओके। ये आपको समझा ना, T डिग्री सेल्सियस वाला, ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये समझा, ओके, फाइन फाइन। तन्वी, पूजा आपको समझो, शर्वरी को शायद से नहीं समझा होगा ये, ओके। तन्वी, पूजा आप दोनों को समझो, फाइन फाइन, okay. Combined gas law, ideal gas characteristic, and now what we are going to do, ये PV is equal to nRT है ना, हम कोशिश करेंगे कि रियल गैस पे अप्लाई करें, ओके। नाउ आई एम स्टार्टिंग। इसमें सबसे पहले बिफोर वी गो टू दैट, आप है ना काइनेटिक थियरी का ना 2 assumptions है, एक्चुअली काइनेटिक थियरी का ना बेटा 7 assumptions है। वो assumption क्या है देखो, पहला assumption ये है कि gases consist of tiny particles which are molecules or atoms, ये तो पता है, okay. On an average, gas molecules remain apart from each other, therefore the actual volume of the gas particles is negligible as compared to the volume of the container, that is why the gases are highly compressible, okay. इसका meaning क्या है, okay, what they are saying, gas molecules remains apart from each other means molecules are very far away from each other, but the actual volume of the gas particles, एक particle की बात नहीं की है, actual volume of the gas particle is negligible as compared to the volume of the container. तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, okay, you can see the board, imagine कि there is a container, और उसमें ना बेटा ये आइडियल गैस के ना बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स है, okay, moving here and there in a random motion, okay, random motion में move हो रहा है, okay. Usually we say from 10th standard, volume of gas is volume of container, volume of gas is volume of container. Now what they are trying to say by that line, यही कंटेनर में फिर से बना रहा हूँ इस और अब मैं क्या कर रहा हूँ बताए, ये सब पार्टिकल्स को आई एम टेकिंग इट टुगेदर, सब यहाँ पे ना साथ में ला रहा हूँ, and they are covering this much volume. If I am collecting that particles together and I try to fit that particles together in one part of the container,
So the volume of gas particles, now you see the volume of gas particles, this is volume of gas particles, is it negligible as compared to volume of the container? समझ में आ गया? Volume of the container. They try to prove this to us. Okay, negligible. Okay, yeah, pressure increase होगा, Z बराबर है. इसके आगे पढ़ते हैं. Okay, that's why the gases are easily compressible compared to the volume of the container. Next. Attractive forces between the gas molecules are negligible at ordinary temperature and pressure. ये बहुत important line है. Ideal gas में पता है हमने पढ़ा, क्या पढ़ा ideal gas में बेटा? What was this second sentence? Second sentence. There is no interactive force between the molecules. Okay, but there are no interactive forces between the molecules. But here, the attractive force between the gas molecules are negligible. Negligible means what? There is no attractive force. Negligible means almost कुछ force है ही नहीं उनके बीच में. Means इस तक उनको हम लोग ने साथ में collect किया है. Collect करने के बाद भी उनके बीच में force of attraction नहीं. Correct? What I'm saying is, जब बेटा वो लोग randomly घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, तब भी उनके बीच में force of attraction नहीं है. जब मैंने उनको इकट्ठा किया, तब भी उनके बीच में force of attraction नहीं है. पर वत्सल, ये आइडियल गैस की कहानी है. रियल गैस में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है. ओके, assumption. Okay, so as a result gas expands to occupy entire volume of the container. तो वो लोग बोल रहे हैं अगर उनके बीच में force of attraction ही नहीं है, तो gas will expand and it will occupy the volume of the container. इसलिए हम लोग स्कूल में बोलते थे volume of gas is nothing but volume of container. Okay, पर ये जो है ना, ये assumption का ना हम लोग रियल गैस के ना रॉन्ग प्रूव करके बताएंगे, जो आज का लेक्चर है. हाँ, पर बेटा वत्सल वो सब रियल गैसेस में है. आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है. मतलब बेटा उसको साथ में लेके आओगे, फिर भी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है. समझ में आ रहा है? ओके, या ये सब कुछ भी लिखना नहीं है इस बेटा, कुछ भी लिखना नहीं. आपसे बात समझो, आज थियोरेटिकल लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ओके, gas molecules are in a constant random motion and move all the possible direction as straight lines. They colloid with each other and with the walls of the container. Okay, do you agree with this part? Okay, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना. ये मॉलिक्यूल है ना एक दूसरे के साथ, ये मॉलिक्यूल्स एक तो रैंडम मूव हो रहे हैं. ड्यू टू दैट रैंडम मोशन दे आर कोलॉइडिंग विथ ईच अदर and they are also colliding with the walls of the container. Means they are colliding with each other and they are also colliding with the walls of the container. So there is a force existing between them. तो force आएगा ना, अगर collide होगा तो बेटा force आएगा, and force आएगा तो force per unit area is what? pressure आएगा. पर ये गैस का ना इंटरनल प्रेशर होता है. ये प्रेशर ऑफ गैस है, पर मैं इसको क्या लिखता हूँ? इंटरनल प्रेशर होगा. और दूसरा इंटरनल प्रेशर का दूसरा मीनिंग क्या है? सॉरी, अनदर प्रेशर क्या होगा? मैं बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ, है ना, उसको कंप्रेस्ड करने के लिए, कुछ करने के लिए मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ, है ना. यस, बट कंटेनर के अंदर की कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स भी होते हैं. वही मैं बोल रहा हूँ, जेड वो आइडियल गैस है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं. एक तो पहले बोल रहे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. बेटा रियल गैस हो गए तो हम एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस की बातें करेंगे, पर अभी तक हम आइडियल गैस की कहानी पढ़ रहे हैं. और एक तो पहला सेंटेंस देखो उनका कितना कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे वो आइडियल गैस है, फोर्थ स्टेटमेंट में अभी बोल रहे कि नहीं वो लोग कोलॉइड हो गए, सो देयर विल बी सम प्रेशर एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड इवन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पता है, ओवरऑल जब आप प्रेशर मेजर करोगे ना जेड, तो दो टाइप के प्रेशर होते हैं. एक गैस का एक इंटरनल प्रेशर और एक बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर. समझ में आ गया? ओके, इसको मैं बेस्ट एग्जांपल क्या बताता हूँ पता है, पीआई के क्लास में इसाक बैठा है, जैद बैठा है, उसके बाजू में सपोज ग्रोहांग बैठा है, और मैं उनके बेंच पे हूँ और मैं जोर से जैद को धक्का मारूं. आई एम गिविंग एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, तो जब मैं धक्का नहीं मार रहा था तब भी देयर वाज सम फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन जैद, ग्रोहांग एंड इसाक. ओके, वो लोग भी इंटरनली कहीं ना कहीं किसी का हैंड किसको पुश हो गया,
किसी को है ना लिखने में प्रॉब्लम था, तो समवेयर दे आर पुशिंग ईच अदर, देयर इज अ प्रेशर एग्जिस्टिंग बिटवीन देम एंड दैट बेंच, और मैं भी बाहर से उनको प्रेशराइज कर रहा हूँ। मैं क्यों प्रेशराइज कर रहा हूँ बताए, मुझे ना वो तीनों को कंप्रेस कर देना है। ओके, मुझे उनको तीनों को कंप्रेस कर, पता है हम लोग बॉयज हम लोग मस्ती करते हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर, है ना, हम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, एक के ऊपर चढ़ा, सपोज मैं चढ़ा, मेरे पीछे ध्रुव चढ़ा, मैं उसके पीछे, और सब बॉयज आ गए। सो व्हाट देयर पॉइंट इज, जो एंड में बैठा है उसको है ना हम लोग को क्रश कर देना है, जो एंड में जो लड़का है उसको क्या है, क्रश करना है। तो हम लोग ये सब मस्ती करते हैं। पॉइंट इज द सेम थिंग, मेरा पॉइंट क्या है, वो एक्सटर्नल प्रेशर है, और जब तक एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तब तक इंटरनल प्रेशर तो है ही। ओके, ये बस इनका मीनिंग है बेटा। ओके, मैं आपको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ रियल गैस की तरफ। ओके, या पर अगर इंटरनल फोर्स ही नहीं है तो कोलिजन कैसे, वही तो वत्सल बोल रहा हूँ, ये वही तो बोल रहा हूँ बेटा, ये अजम्पशन भी रॉन्ग है ना वत्सल, बोल रहे ऐसा है। ओके, बोल रहे ऐसा है, पर बेटा ये अजम्पशन रॉन्ग है, ये बेटा रियल गैसेस में, मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन किया वो रियल गैस में, पर एक्चुअली आइडियल गैस में ऐसा नहीं होगा। फिर देखो फिफ्थ क्या बोला, सो प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो व्हाट डज दैट मीन, कि भाई वो गैस पार्टिकल वो वॉल ऑफ द कंटेनर को, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कहीं पे अट्रैक्ट हो रहा है या उसके साथ कोलॉइड हो रहा है, सो इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पर हमने आइडियल गैस में क्या पढ़ा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडरस्टूड। पर रियल गैस में ऐसा होगा ना वत्सल, रियल गैस में तो ऐसा होगा ना। ओके, वहां पे तो फोर्स आएगा ही ना, है ना, वहां पे वंश, ये आइडियल गैस में कोई फोर्स नहीं। ओके, there is no exist, they are not exerting any force on the walls of the container, there is no force of attraction between any molecules, but real gas में तो ये सब होगा। okay, the collision of gas molecules are perfectly elastic, which means the total energy of the gas particles remains unchanged after collision. You know your physics part, before collision and after collision momentum is same, है ना, before collision after collision, only if the collision is what, elastic, elastic means there is no loss of energy। फिजिक्स क्या बोलता है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, बिफोर कोलिजन भी जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी है, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। okay, so the momentum is conserved, energy is conserved, that's what we learned। okay, so you know this, and the different molecules of the gas move at different velocities at an instant, hence have different kinetic energies, but average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature। ये सब लोग है ना अग्री करोगे कि नहीं, हमारे घर पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स है ना फास्ट भाग रहे हैं, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स है ना स्लो भाग रहे हैं, है ना, सब लोग है ना बेटा सेम स्पीड पे नहीं है। जो है ना ज्यादा टेम्परेचर, जो ज्यादा टेम्परेचर होगा, मैं इसको कैसे पकड़ता हूँ पता है, अगर है ना मेरे घर पे ना वो सन का एकदम शेड वाला लाइट आ रहा है, सन का एकदम शेड वाला लाइट आ रहा है, प्रॉपर अच्छा से है ना, एकदम प्रॉपर सन रेज आर फॉलिंग इनटू माय हाउस, सो क्या हो जाएगा, नियर द विंडो फ्रॉम वेयर द सन रेज आर कमिंग, near the window the temperature will be hotter, so the particles, the air particles near the window will be moving with a high speed। okay, पर मैं जहाँ मेरे घर पे अंदर, अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम द विंडो, मैं जहाँ पे सोफे पे बैठा हूँ, जहाँ पे कोई सनलाइट के रेज नहीं आ रहे, मस्त पंखा चालू है, एसी चालू है, तो क्या वहां पे टेम्परेचर वहां से डिफरेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वहां पे क्या होगी, स्लो हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल मीन्स ओवरऑल एक ही रूम में सब पार्टिकल्स की ना एनर्जी डिफरेंट है, सब पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट है, बट ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट, खिड़की वाले एयर के मॉलिक्यूल्स, मेरे सोफे के एयर के मॉलिक्यूल्स, मेरे किचन के एयर के मॉलिक्यूल्स, सबकी अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखूं, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अंडरस्टूड, कि मीन्स जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, ये बेटा अजम्पशन है, और ये सब है ना अजम्पशन है। ओके, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शिवराम, या एयर ज्यादा एक्सपांड होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, या यू आर राइट शिवराम, यू आर राइट। ओके, ये आज की कहानी नहीं है, आज की कहानी ये नहीं है। ओके, अब यहाँ से हम चालू करेंगे। ओके, एक और चीज है मैं आपको बता दूं अबाउट आइडियल गैस एंड रियल गैस, अबाउट आइडियल गैस एंड, सॉरी 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 सॉरी, एक और चीज है जो आप लोगों ने लिखा, आपने क्या लिखा, दिस आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट पार्टिकल्स, एम आई राइट, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या बताए वंश, पॉइंट पार्टिकल्स का मतलब क्या, मीन्स अगर मुझे अभी डायग्राम बनाना है, अब ध्यान से सुनना, अगर आप जब भी पढ़ोगे वैंडरवाल इक्वेशन को, कीप दिस टू डायग्राम इनटू योर माइंड।
आइडियल गैस और रियल गैस। ये आइडियल गैस का कंटेनर है, ये रियल गैस का कंटेनर है। आइडियल गैस के पार्टिकल्स में कैसे पता होगा? पॉइंट पार्टिकल्स, पॉइंट। ओके, मैं रियल गैस का पार्टिकल कैसे पता होगा? रियल गैस का पार्टिकल होगा, इट विल बी लाइक अ रिजिड स्फीयर। तो पार्टिकल्स बड़े बड़े हो गए ना, रियल गैस के CO2 गैस का बड़ा है, O2 गैस का बड़ा है, N2 गैस का बड़ा है, H2 गैस का छोटा है, पर वो छोटू होगा, पर वो छोटू स्फीयर होगा ना। तो बेटा उस स्फीयर को ना ऐसे बताने का, इमेजिनेशन में ऐसे बताने। ओके, पर क्या है? रैंडम है, समझ रहे? रैंडम है। ओके, ओके, hollow sphere or whatever you take it, whatever you take it, it is called as a rigid sphere। आप hollow sphere पे मत जाओ, it is rigid sphere। वो है ना बेटा, एटम खाली नहीं है, वो मॉलिक्यूल एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, तो हॉलो वॉलो बात मत करो। ओके, आपको समझा ये पार्ट? ओके, ये दोनों में ये समझना, ये कहीं पे भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये सिर्फ समझना है कि आइडियल गैस के बेटा टाइनी पार्टिकल्स होता है और इसके रियल गैस के टाइनी पार्टिकल्स नहीं होते। ओके, तो एक और चीज बता दूं आपको, पता है ये आइडियल गैस है, राइट? टाइनी पार्टिकल्स है ना, ये टाइनी पार्टिकल्स है। ये टाइनी पार्टिकल को हमने क्या किया था जैनम? हमने उनको इकट्ठा कर दिया था, है ना। वी ब्रॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर, we collected all of them together, which is covering a very small volume, which is negligible, which is very, which is covering very small volume, which is negligible। अब मैं वही करूँ पूजा, ये रिजिड स्फीयर को मैं एक साथ इकट्ठा करूँ, कैन वी डू दैट? रिजिड स्फीयर को, ओके। तो अगर मैं रिजिड स्फीयर, कितने रिजिड स्फीयर? 1 2 3 4 5 6, तो राज सर यहाँ पे 6 ड्रॉ करेंगे। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर। ओके, क्या ये वॉल्यूम अभी नेग्लिजिबल हो सकता है? इज इट पॉसिबल? हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, सो ये वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या समझा वत्सल? हम आइडियल गैस के लिए स्कूल से बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए। बट फॉर रियल गैस के लिए वी डोंट से वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ये। ओके, मैं आपको बताता हूँ इनकी लैंग्वेज क्या है। ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ना, आप बी कैच करो, इट इज बी। ये सब गैस मॉलिक्यूल्स को बेटा मैंने इकट्ठा करके, ये इतनू सा क्या है, ये इतना सा क्या है, बी है। और ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? लेट अस say what is volume of container, let us take it as V। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मीन्स ये पूरा वॉल्यूम कंटेनर है, पूरा वॉल्यूम कंटेनर का ये पूरा पार्ट वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ जाएगा। ओके, ए नहीं लेना है शिवराम, ए नहीं लेना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। और अगर अभी मैंने पूछा, अगर अभी मैंने पूछा रियल गैस में, अभी आप ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ओके, अगर अभी मैंने पूछा व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके, तो आप लोग क्या बोलोगे पता है? ये तो राज सर ने इकट्ठा किया, बट रियलिटी में अगर कोई गैस को सिलेंडर में फिल करेंगे तो क्या वो एक साइड ऑफ द कंटेनर पे आ जाएंगे? नहीं, ये रिजिड स्फीयर्स भी तो रैंडम मोशन हो रहे हैं ना, रैंडम मोशन हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है वत्सल? इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस occupied by gas molecules। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? वो कहाँ रैंडम मोशन हो रहा है, वो कहाँ पे रैंडम मोशन हो रहा है। तो कहना इसे, यहाँ रैंडम मोशन हो रहा है एवरीबॉडी, यहाँ रैंडम मोशन हो रहा है, यहाँ पे सब जगह पे, करेक्ट। ओके, कैन आई पुट इट लाइक दिस, यहाँ मैथ्स जैसा रैंडम मोशन हो रहा है। सो व्हाट इज दिस वॉल्यूम? What is this volume? Yes, Niti, that's your point. That volume of gas is V minus B. What is V? Is volume of container. What is B? Is the volume of gas molecules. So what is this volume of gas? Is nothing but ये volume of gas जिसने occupy किया, means where they are moving a random motion। और ये किसके लिए था पता है? ये बेटा 1 मोल के लिए था।
ओके, नीति में यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल के लिए क्या मिला हमें, V माइनस बी मिला, क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस जहाँ पे अगर n मोल्स है वहां पे हम क्या लिखेंगे, V माइनस एन बी, करेक्ट, V माइनस एन बी। यस जैनम, रैंडम मोशन। अब सोचो, अब है ना मैं आपको आइडियल की कहानी और ये ना कनेक्ट करके बताता हूँ। आप सोचो स्कूल में क्या पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पर वॉल्यूम ऑफ गैस तो इतना ही है, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस इतना ही है, तो क्या ये वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो सकता है, नहीं। पर हम स्कूल में ये बोल रहे थे ये गैस यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहा है, हम स्कूल में बोल रहे थे ये गैस यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहा है, तो ये ही वॉल्यूम ऑफ गैस ही क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। सो इन शॉर्ट, whenever we have mentioned volume of gas in school, we are actually considering गैस का रैंडम मोशन, जहां जहां जो जो स्पेस में हो रहा है कंटेनर में, वो सब वॉल्यूम ऑफ गैस है। Am I right? Everybody? Sure? पक्का? मीन्स जो जो स्पेस में गैस रैंडम मोशन हो रहा है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये केस में आइडियल गैस है। तो अगर वो आइडियल गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो गैस मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ रैंडम हो रहा है, वो सब वॉल्यूम ऑफ गैस में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो आना चाहिए ना शर्वरी, यहाँ पे रिजिड मॉलिक्यूल्स भी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम मुझे कंसिडर करना चाहिए ना। तो वो वॉल्यूम कौन सा है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस एन बी, बिकॉज यहाँ पे ना मैं टाइनी पार्टिकल्स का है ना मैंने वॉल्यूम को नेग्लिजिबल बता दिया है ना वत्सल, ये जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है यहाँ पे इनकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल बता दिया। इट मींस ये केस में क्या था पता है, ये केस में भी बेटा V माइनस बी था वत्सल, ये भी B था, बट B so small that we say V minus B is nothing but V, है ना, we say the V minus B is nothing but V, B is almost zero, we can say almost zero। पर यहाँ पे हम जीरो ले सकते हैं नहीं, ये तो रिजिड स्फीयर है। आप सोचो ना बेटा, हमारे घर पे हम है ना CO2 इवॉल्व करते हैं हमारे बॉडी में से ब्रीदिंग में, तो क्या वो CO2 गैस जो हमारे घर पे है, तो क्या वो CO2 मॉलिक्यूल तो कितना बड़ा है, आपने ना नीरव सर के पास वो स्ट्रक्चर सीखा। हाउ कैन आई निग्लेक्ट सच अ बिग मॉलिक्यूल का पार्टिकल, मीन हाउ कैन आई निग्लेक्ट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इज इम्पॉसिबल। O2 का भी साइज हम निग्लेक्ट नहीं कर, वैसे एक थोड़ी है जैनम, वैसा एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, ऐसा तो 1 मोल में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो सबकी साइज कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स आइडियल गैस में 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी टाइनी टाइनी, वो तो बेटा हमें दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। ओके, इन शॉर्ट है ना जैनम में क्या कंसिडर होता है, वो जो व्हाट वी से गर्ल्स को पता होगा, गर्ल्स हम लोग ना चॉकलेट को ग्रेट करते हैं, ग्रेट है ना, फरेरो रोशर चॉकलेट को ग्रेट करते हैं टू डू द डेकोरेशन ऑन द केक, है ना, ग्रेट करते हैं। ओके, तो ना उसके छोटे 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 पाउडर जैसा बना देते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा पाउडर बना देते हैं, वो जो पाउडर पाउडर चॉकलेट है ना, वो आपका बेटा टाइनी पार्टिकल्स है, आइडियल गैस जैसा। पर क्या फरेरो रोशर का एक लड्डू जो रिजिड रिजिड स्फीयर है, एक लड्डू, एक फरेरो रोशर का चॉकलेट जो रिजिड स्फीयर है, क्या उसको अगर मैं फरेरो रोशर के डब्बे में रखूँ तब क्या उसका वॉल्यूम निगलेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ गया, समझ गया ये पार्ट। ओके, एवरीबडी टेल मी, ये पार्ट कहानी क्लियर है। मैंने आपका PV इज इक्वल टू NRT में वॉल्यूम करेक्शन बता दिया, इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम करेक्शन बता दिया। ओके, एक और चीज जो हमारे बुक में नहीं लिखा है, वत्सल इज सेइंग सर बट फॉर रियल गैस वो B वाले पार्ट में भी थोड़ा वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा ना, सो V प्लस B क्यों नहीं होगा। हाँ वो होगा ना, तो बेटा वो B वाला हम कंसिडर कर रहे हैं ना, पर वही तो मैं बोल रहा हूँ वत्सल, वही तो हम बोल रहा हूँ, पर हम वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिडर क्या कर रहे हैं, हम वॉल्यूम ऑफ गैस ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे जितने वॉल्यूम, यहाँ पे जितने गैस मॉलिक्यूल्स है इसको वॉल्यूम कंसिडर नहीं करे, वो गैस मॉलिक्यूल्स जहां जहां घूम रहे हैं दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ गैस। रियलिटी में व्हाट इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट द गैस मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑक्यूपाइंग दैट स्पेस। समझ रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस हम बोलते हैं ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में हम प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट ये कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में वो जहां जहां रैंडम मोशन कर रहा है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मैंने इकट्ठा करके ये बताया ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, पर वो जहां जहां रैंडम मोशन करेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा।
डोंट यू थिंक वत्सल, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, डोंट यू थिंक ये 1 2 3 4 5 6 अब रैंडम मोशन हो रहा है, तो इतना स्पेस जहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इतना स्पेस जहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इतना स्पेस जहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, वो स्पेस यहाँ पे भी आ गया, है ना, है ना। तो मुझे वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना बेटा, मुझे वो सॉरी वो मुझे हाँ एक्सक्लूड करना पड़ेगा, दैट हैव टू रिमूव ना, दैट हैव टू रिमूव ना, तो ही मुझे वो रैंडम स्पेस में यहाँ पे जो मुझे रैंडम स्पेस पे जहाँ वो घूम रहा है, तो ही मुझे एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम मिलेगा ना जहाँ पे इट इज एक्सिस्टिंग। अब समझा, समझा आपको, गेटिंग इट। इसका दूसरा मतलब क्या है पता है वत्सल, पीआई में हम लोग जो क्लास में बैठते हैं, वो क्लास में बैठते हैं, तो बेटा वत्सल कहाँ पे पीआई में घूमेगा क्लास के अंदर, एम्प्टी स्पेस में जाके घूमेगा ना। ओके, पर क्या वत्सल आप जो बेंच पे बैठे हो क्या वो बेंच पे आप घूमोगे, नहीं घूमोगे, नायरी को राउंड थोड़ी है ना, वहां पे थोड़ी आप घूमोगे, तो जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहां पे आप चलोगे ना। ओके, सो बेटा आप जो आप बैठे हो, क्या वो वॉल्यूम को तो मुझे एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा ना, तो ही आपकी रैंडम मोशन मुझे मिलेगी। यू गेटिंग दिस, समझ रहे हैं या। ध्रुवांक मैंने आपका डाउट नहीं देखा, नचिकेत मैंने आपका डाउट भी नहीं देखा, सॉरी आई डिडंट रीड, कैन यू जस्ट राइट इट अगेन। या अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स शुड बी इनफाइनाइट बेटा, बट यहाँ पे इनफाइनाइट लेंगे नहीं नचिकेत, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ना मोल कंसिडर करते हैं, मोल कंसिडर करते, तो 1 मोल में बेटा फाइनाइट है ना, दे सेट द वैल्यू इज 6 into 10⁻23। ओके, योर साइंटिफिक नॉलेज इज करेक्ट, बट विद द मोल कंसेप्ट के नॉलेज से इट इज 1 मोल, तो वहाँ पे 6 into 10⁻23 वो आपका फाइनाइट हो गया। ओके, ओके, सेम डाउट था वत्सल जैसा। ओके, नाउ वी गॉट इट। ओके, मींस आइडियल गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम, आइडियल गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम गैस वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता ड्यू टू स्मॉल साइज। यस ध्रुव, यू गॉट इट, यू गॉट इट। ओके, यू गॉट इट। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। प्रेशर करेक्शन तो इससे भी बढ़िया है, मजा आएगा। ओके, चलो। ओके, रुक जाओ, रुक जाओ, कौन है ये वंश, रुक जाओ, रुक जाओ, अब लिखो मत, रुक जाओ, अब बेटा साथ में पढ़ो, फिर मैं आपको लिखाता हूँ, डोंट वरी। ओके, ये आपको समझ गया, ये क्या था आपका करेक्शन था इन वन। ओके, अब आपका है ना प्रेशर करेक्शन। ओके, फिर से मैं ना बेटा आइडियल गैस और रियल गैस का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो ही हमें समझेगा वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। ओके, या जैनम यू आर राइट। ओके जैनम, क्या आप कॉपी पेस्ट करके एवरीवन पे डालोगे? ओके, सबको बताने के लिए, क्या ये करेक्ट है जो जैनम ने लिखा? ऐसे करेक्ट ही है, बट डू यू ऑल अग्री व्हाट जैनम रोट? जस्ट चेक, जैनम ने खुद का बनाया, बराबर है जैनम ने जो लिखा वो, है ना। v-0 v हो जाएगा वत्सल, और v-b वो हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोला था मैंने वर्ड वत्सल, क्या बोला था? इट इज एन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के साथ साथ इसको हम है ना को वॉल्यूम भी बोलते हैं, और को वॉल्यूम। ओके, और आप है ना प्रेशर करेक्शन के पहले आपको है ना बेटा जेई में एक बार क्वेश्चन आ गया था, ऐसा ही है ना, ये इक्वेशन बना के पूछा था, इसमें वॉल्यूम करेक्शन क्या है, तो डायरेक्ट आपको बताना था ऑप्शन में, सर v-nb हमारा क्या है, वॉल्यूम करेक्शन। ओके, पर उन्होंने एक बार जेई में क्या पूछा पता है, ये जो बी कांस्टेंट है ना, ये जो बी कांस्टेंट है ना, बी कांस्टेंट है ना, जो बी कांस्टेंट है ना, उन्होंने ना उसका यूनिट पूछा, दे आस्क्ड यू द यूनिट ऑफ इट। ओके, तो आप सोचो, हमने है ना फिजिक्स में डायमेंशन में पढ़ा, वो ही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है अगर उनका डायमेंशन सेम है। क्यों अग्री? अगर ये भी वॉल्यूम v है, तो ये एनबी भी क्या है बेटा, वॉल्यूम ही है। दिस इज व्हाट आई रोट, है ना वत्सल बेटा, दिस इज व्हाट आई रोट, कि ये है क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ही, अगर वो वॉल्यूम ही है बेटा, सो कैन आई डायरेक्टली राइट एन बी इज नथिंग बट v, कैन आई डायरेक्टली राइट b इज नथिंग बट v by n? You know the v is liter and this is mole,
You got the unit of B, it is liter per mole. Okay, ये पूछा जेई में, समझा? Okay, clear? Okay, next is okay, that's called as a significance of B. Okay, मैं प्रेशर करेक्शन पे जा रहा हूँ, पर एक और क्वेश्चन चाहिए का, कर रहे तो कर रहे थे। हाँ, V माइनस बी है ना वंश बेटा, ये V माइनस बी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इज 1। यू अंडरस्टैंड बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 1, है ना? पर अगर बेटा नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएगा तो 2 भी हो जाएगा, है ना? डबल्ड हो जाएगा ना बेटा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम डबल्ड हो जाएगा। ओके दर्श, मैं बताता हूँ कभी लिखना है, आप पहले ना सुन लो, समझ गए वंश? ऐसा ना हम लोग क्वेश्चन देते, ये बी है ना, ये फाइनली बी क्या है? एक मिनट, बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। पर ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिजिड स्फीयर के ऊपर डिपेंड करता है। रिजिड स्फीयर मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा दर्श? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। तो फाइनली द बी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर मैं ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करने वाला है, तो यू टेल मी H2O2 N2, ओके, किसका साइज बड़ा है? ओके, किसका साइज बड़ा है? जिसका मोलार मास बड़ा है ना? जिसका मोलार मास बड़ा है ना? किसका बड़ा होगा? O2 का है N2 का? या मोलार मास बड़ा है यूजुअली? नहीं 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 नहीं, मोलार मास नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। इट्स नॉट अबाउट मोलार मास, वेट नहीं, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल किसका बड़ा है? पीरियोडिक टेबल चैप्टर, तो किसका बड़ा है? H2 का सबसे छोटू है। ओके, उसके बाद किसका होगा? O2 का छोटू है, और N2 का बड़ा है। नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन O2, है ना? तो अगर हम ये लॉजिक से जाए, मीन्स है ना, आप इमेजिन करो वंश, इमेजिन करो H2 के ना छोटे छोटे स्फीयर्स, छोटे छोटे स्फीयर। O2 के ना बेटा यही रिजिड स्फीयर है ना, थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए, है ना? और N2 के है ना, N2 के बेटा उससे भी बड़े हो गए, बड़े हो गए। ओके, समझा? ओके, आपने ये राउंड वाला अनार फोड़ा है? राउंड वाला अनार, फायर क्रैकर्स में राउंड अनार आता है, गोल गोल वाला अनार आता है, फोड़ा है? उसमें ना छोटा छोटा राउंड आता है, बड़ा बड़ा राउंड आता है, मीडियोकर आता है, ये वो है। तो बेटा आप लॉजिकली सोचो, ये ना बड़ा वाला जो अनार है, या बड़ा वाला जिसका साइज है, इसको अगर मैं साथ में लूँ, है ना बेटा, अगर मैं इसको ये बड़े बड़े को साथ में लूँ, डोंट यू थिंक इट इज कवरिंग मोर वॉल्यूम? और इसके छोटे छोटे को साथ में लूँ, इज इट गोइंग टू कवर मोर वॉल्यूम? नो। और यहाँ पे और छोटा होगा तो इट इज गोइंग टू कवर मोर वॉल्यूम? नहीं। तो बी किसका ज्यादा है? जिसकी साइज ज्यादा है, फिनिश्ड, कंसेप्ट इज ओवर। बी किसका ज्यादा है? साइज जिसका ज्यादा है। ओके, ये आपका जेई क्वेश्चन है बेटा, ये आपका जेई क्वेश्चन। Yeah, have the less space to move, that is correct, Dhruvang. But right now they are not asking about the less space to move, they are talking this B part. What is this B part? इसलिए मैंने ड्रॉ करके बताया। What is this B part? आप ध्रुवांग जो बोल रहे हो वो V माइनस NB है बेटा, मैं V माइनस NB की बात नहीं कर रहा। हाँ, व्हाट ध्रुवांग इज सेइंग कि सर ये B अगर ज्यादा हो गया तो उनके पास लेस स्पेस है मूव करने के लिए, वो करेक्ट है, तो उनका V माइनस NB कम, पर B विल बी व्हाट? मोर। यस दर्श, N2 का ग्रेटेस्ट होगा। परफेक्ट। ओके, चैतन्य, या इट इज कॉल्ड एज कंप्रेस्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं, या कंप्रेस्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं चैतन्य, या इनटू वॉल्यूम डेविएशन में ज्यादा अफेक्ट करेगा। ओके, नीति आपको समझा बेटा? यू सेड रिपीट, नीति आई थिंक यू मिस्ड इट, यू मिस्ड इट। नीति मैंने सिर्फ इतना बोला कि साइज जिसका बड़ा है, साइज जिसका बड़ा है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जिसका बड़ा है बेटा, दैट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। समझ रहे हैं? तो उसका बी वैल्यू ज्यादा हो गया ना नीति, दिस इज बी वैल्यू, एम आई राइट? दिस इज योर बी वैल्यू। ओके, सो इट मींस दिस इज व्हाट द ट्रिक इज। वहां पे बेटा ये सब लिखा नहीं हमारे बुक्स में, पर वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर, और उसका यूनिट भी पता चलता है। क्लियर सबको? अब मैं जाऊँ प्रेशर करेक्शन पे।
प्रेशर करेक्शन में। हाँ एग्जाम में देंगे बेटा, वो कितना मोल्स है वो देंगे, पर बेटा डोंट वरी, इसके ऊपर सम्स नहीं आते जैनम। मैं आपको बता दूं, ये प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन पे सम्स नहीं आते। इट इज अ थियोरिटिकल कंसेप्ट, और जेई में थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है इसका। तो थियोरिटिकल क्वेश्चन क्या बनेगा, ये थियरी क्वेश्चन हो गया, इंक्रीज डिक्रीज थियरी क्वेश्चन हो गया, यूनिट थियरी क्वेश्चन हो गया, वॉल्यूम करेक्शन क्या है थियरी क्वेश्चन हो गया। नो सम्स, नो सम्स। हाँ एक दो सम्स आपको पीआई वॉल्यूम में मिलेंगे, पर अभी तक जेई का पैटर्न नहीं है इसके ऊपर सम्स पूछने के लिए। व्हाई? बिकॉज एनसीईआरटी बुक में इसके ऊपर कोई सम्स नहीं है, इट इज ओनली थियोरिटिकल पार्ट। ओके, दैट्स व्हाई। ओके, व्हाट इफ एनबी का वैल्यू वी के इक्वल हो जाए, देन ओवरऑल वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। हाँ मीन्स बेटा जीरो नहीं हो जाएगा, आप गलत सोच रहे हो। अगर एनबी का वैल्यू, ये जिसने भी लिखा है, गेट योर नेम, पार्थ, पार्थ, पार्थ 17। अगर बेटा पार्थ क्या बोल रहा है, अगर एनबी का वैल्यू वी हो जाएगा, पार्थ बोल रहे हैं अगर एनबी का वैल्यू, ओवरऑल एनबी का वैल्यू अगर वी हो गया, तो वो पूरा कंटेनर ही कवर कर रहा है ना। तो हम बोलेंगे हाँ उसके पास स्पेस ही नहीं है, मूवमेंट करने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फिर भी हम जीरो नहीं बोल सकते, वहां पे क्या बोल सकते हैं पता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, हम लोग डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का साइज लेना पड़ेगा, है ना, साइज लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, वहां पे वो वी माइनस एन बी करके नहीं करेंगे। वी इज इक्वल टू एन बी, बेटा ऐसा वंश कभी आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। व्हाट पार्थ ने बताया ना, वो पार्थ ने जो बताया ना बेटा, ये बहुत हाइपोथेटिकल है। पार्थ क्या बोल रहा है पता है, एन बी मतलब सोचो ये एन बी अगर वी से इक्वल हो गया, मीन्स ये बड़ा बड़ा बनेगा। मतलब पार्थ क्या सोच रहा है पता है, सर ये है ना पूरा ऐसे बड़े 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 कनेक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हैं? पार्थ ऐसा सोच रहा है, पर ऐसा नहीं है। पार्थ वो हमारा वो मैथ्स नहीं है, वो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, अंदर का एरिया फाइंड करो, है ना, ऐसा बेटा नहीं आए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो इट इज नॉट दैट वे। मीन्स बेटा आप सोचो, मतलब है ना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो शेप है, उतना ही दो तीन मॉलिक्यूल्स का शेप है, उतना ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। तो बेटा वो काम के क्या है, हमारे कुछ काम के नहीं, है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल थिंग व्हाट पार्थ इज इमेजिन, व्हाट पार्थ इज इमेजिनिंग। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मतलब पूरा कंटेनर बी से भरा गया, यस पूरा कंटेनर बी से भर गया। ओके, एक और लॉजिक, चलो पार्थ ने ये बताया ना, पार्थ में आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। ओके, पार्थ यहीं पे। ओके, ऐसा है ना बेटा, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, शुड आई गो विद द नेक्स्ट लॉजिक, या एब्सोल्यूट जीरो का कंडीशन हो जाएगा राज, वो भी करेक्ट है, इन वन वे इट इज करेक्ट। उन्होंने ना कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे ना, ये फिंगर टिप्स वो सब नहीं, कुछ बुक पढ़ोगे ना, वो लोग ने बोले बी इज नथिंग बट 4 times द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल, नॉट द कंटेनर, इज 4 times द वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। इसका एक्सप्लेनेशन जो बुक में लिखा है ना, उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया। उसने क्या किया था, बी इज इक्वल टू 4v, आगे बढ़ गया वो, उसने कुछ बताया नहीं। ओके, अब देखो ये क्या है, हाँ ऑलवेज 4v होता है, पर वंश इनकी कहानी देखो कैसी है। ओके, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैं इतनी से वॉल्यूम में, ओके, अगर मैं ये दो पार्टिकल को ऐसे कनेक्ट करूं, दो पार्टिकल को कनेक्ट करूं, फिर भी ना यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाता है। ओके, तो उन्होंने बोला कि ना दो दो गैस मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट मत करो, तो उन्होंने बोला ना 3 गैस मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करो, 3 गैस मॉलिक्यूल्स, 3 गैस मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करो। ओके, ये 3 गैस मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो गए, तो इसका ना वॉल्यूम V1 होगा, या चलो V होगा, इसका वॉल्यूम V होगा, इसका वॉल्यूम V होगा। क्या ये तीनों मिलके 3V हो गए? 3V हो गए, 3V। सो 4V क्यों बोला शर्वरी? 4V इसलिए बोला, कैन यू सी देयर इज एन एम्प्टी वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। ओके, वो भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या पता है शर्वरी? फरेरो रॉशर के डब्बे में फरेरो रॉशर रखा, और दो फरेरो रॉशर के बीच में एम्प्टी स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस का भी वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा, तो डब्बा सही बनेगा, तो डब्बे का वॉल्यूम सही निकलेगा। यू गेटिंग इट? तो उन्होंने क्या किया पता है, जो एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस, ये सब एम्प्टी स्पेस को ना वन मोर वॉल्यूम ले लिया, सब एम्प्टी स्पेस को ना वन मोर वॉल्यूम ले लिया। सो 3 + 1 क्या हो गया? 4 वॉल्यूम हो गया।
ओके, आज तक JEE में ये नहीं आया है, और फिर भी बहुत सारे बुक्स देती है, लाइक नरेंद्र अवस्थी का बुक देगा ये, ओके, आपको वो प्रदीप का बुक देगा, प्रदीप शर्मा का बुक देगा, वहां पे आपको मिलेगा, बट नॉट एन इम्पॉर्टेंट वन टू गो विथ। ओके, एक ही बेटा ये अजम्पशन है शर्वरी ये ना बेटा अजम्पशन है इसका, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, पर उन्होंने कैसे एक निकाला पता है शर्वरी, वो लोग है ना बेटा ऐसा मीन्स ना, वो 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स है ना, 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स है ना, तो उन्होंने बेटा ना 3 3 को कंबाइन किया, 3 3 को कंबाइन करके ना उन्होंने वाइड बनाया, 3 3 को कंबाइन करके। इसको है ना शर्वरी हम है ना सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे, शर्वरी बेटा इसको हम सॉलिड चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर में इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड है वो आपको सर सिखाएंगे। फिर बेटा एक ऐसा वॉइड बनता है ना जो आपके ना 6 स्फीयर से बनते हैं, 6 स्फीयर से बनते हैं। ओके, अभी मुझे वो ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। ओके, वो बेटा ऐसा होता है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ये जो बीच का दिख रहा है ना, ये जो मैं पिंक से बताता हूँ, जो बीच का दिख रहा है ना, बीच का, ओके, ये बेटा जो 6 स्फीयर से बनता है ना उसको हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और जो ये 3 स्फीयर से बनता है ना उसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो उन्होंने 3 3 स्फीयर का लिया, देखो 3 स्फीयर है, नमन क्या बोला, 3 स्फीयर है, फिर भी टेट्राहेड्रल वर्ड बोला, टेट्राहेड्रल जैसा वो स्ट्रक्चर बनता है, जिससे उन्होंने यहाँ पे 4 लिखा है, 4 में वो 1 पार्ट क्या है, वो वॉइड है, वो क्या है, वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है। ओके, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए था, इसलिए मैंने बताया, बट इसका यूज कहीं पे भी नहीं आएगा। आप पीआई का कोई भी पेपर उठा के देख लो, जेई का कोई भी पीवाईक्यूज जाके देख लो, नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। अंडरस्टूड, इवन एट द एडवांस लेवल इट वोंट कम, बी इज इक्वल टू 4 भी कहानी, इट वोंट कम, बट कुछ बुक्स देते हैं इसलिए हम आपको बताते हैं। ओके, अगर 5 पार्टिकल स्पेस हुआ तो बी इज इक्वल टू 6 पर ऐसा होगा ही नहीं ध्रुव, उन्होंने अजम्पशन ये रखा है 3 के साथ ही करो, 5 पार्टिकल 6 पार्टिकल से, फिर बेटा 11 पार्टिकल के साथ भी कर सकते हैं ना, 23 पार्टिकल्स के साथ भी तो कर सकते हैं, पर उन्होंने ये अजम्पशन रखा है कि हम 3 के साथ ही करेंगे। ओके, वो 3 पे इसलिए बिकॉज बेटा वो एग्जैक्टली ना वो फिट बैठ रहा था शर्वरी, वो फिट बैठ रहा था, उसका मैं एक और रीजन बता दूं शर्वरी, उसका एक और रीजन है कि जो एम्प्टी स्पेस है ना, वो एम्प्टी स्पेस जो बची हुई थी ना, वो एग्जैक्टली 1 वॉल्यूम जितना आ रहा था। ओके, ये तो बेटा मैं मेरे हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट स्फेरिकल थोड़ी बन रहा है, एग्जैक्ट रिजिड स्फीयर थोड़ी बन रहा है, एग्जैक्ट रिजिड स्फीयर बनाओगे तो एम्प्टी स्पेस का भी वॉल्यूम उतना ही होगा जो एक रिजिड स्फीयर का है। ओके, इसलिए उन्होंने 3 वाला कंसिडर किया है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, इसलिए वो लोग बोलते हैं बी इज इक्वल टू 4 समझ में आ गया, समझ में आ गया, करे आगे, करे आगे, चलो। अब आपको आपको बी है ना टॉप टू बॉटम, बी है ना आपको टॉप टू बॉटम पूरा क्लियर हो गया। अब हम प्रेशर करेक्शन पे जाते हैं, मजा आएगा प्रेशर करेक्शन पे। ओके, फिर से हम वही लॉजिक पे जाएंगे, आइडियल गैस और रियल गैस, फिर से मैं सेम डायग्राम बनाऊंगा। ओके, और यहाँ पे भी मैं सेम डायग्राम बनाऊंगा। ओके, अब आप सोचो, यहाँ पे है ना ये आइडियल गैस के पार्टिकल्स है ना बेटा, मैं है ना सर डॉट डॉट नहीं बना रहा हूँ अभी मैं थोड़ा सा बड़ा बना, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ओके, मूविंग इन अ रैंडम मोशन, मूविंग इन अ रैंडम मोशन, फिर ये बोलेगा कि मेरे को तो जाना है, दीवार को टकराना है, प्रेशर क्रिएट करना है ना, ये जाएगा, दीवार क्रिएट नहीं, अभी कुछ लिखना नहीं है प्रियांश, कुछ लिखना नहीं है, अब सुनो आगे। ये वाला पार्टिकल बोलेगा भाई मुझे प्रेशर क्रिएट करना है वॉल ऑफ द कंटेनर पे, तो मैं जाऊंगा और इसको ना जोर से कोलॉइड करूंगा, इसके साथ टकराऊंगा। तो जब ये कोलॉइड कर रहा है तब क्या ये पीछे वाला पार्टिकल इसको रोकेगा, नहीं रोकेगा, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स में FOA लिखता है शॉर्ट फॉर्म में, FOA, सो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या ये मॉलिक्यूल इजीली कोलॉइड हो जाएगा, ओके, मींस दिस मॉलिक्यूल विल बी colliding on the wall of the container with full impact, full impact, फुल जोर से जा जाएगा और जोर से जाके उसको कोलाइड करेगा और वो प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, अब देखते हैं अंश यहाँ क्या हो रहा है रियल गैस में। ओके,
रियल गैस में पार्टिकल की रिजिड स्फीयर, ये पार्टिकल की रिजिड स्फीयर, ये पार्टिकल की रिजिड स्फीयर। ओके, ये भी जाके ना कोलॉइड करने जाने वाला है, पर क्या ये पार्टिकल इसको रोकेगा? रोकेगा? ये पार्टिकल भी इसको रोकेगा? व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हियर, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या ये कोलिजन, ये वॉल के साथ कोलिजन इसका फुल इम्पैक्ट होगा? नहीं, यहाँ पे उसका कोलिजन ये क्या होगा? लेस इम्पैक्ट होगा ना, लेस इम्पैक्ट होगा, लेस इम्पैक्ट होगा। ओके ओके, ये हमारी मम्मी यहाँ पे खाना लेके खड़ी है और यहाँ पे हम है ना पबजी खेल रहे हैं, और यहाँ पे पबजी खेल रहे हैं तो पबजी में दूसरे फ्रेंड के साथ कनेक्शन है, तीसरे फ्रेंड के साथ कनेक्शन है, इसके अंदर ही इतना इन्वॉल्व है कि हमारा खाने की तरफ इम्पैक्ट गया ही। फिर मम्मी ने जोर से चिल्लाया, हम आए, पर हमारा खाने की तरफ इम्पैक्ट विल बी व्हाट? लेसर। ओके, और दूसरा क्या किया बताया, यहाँ पे आइडल गेस्ट ने, हम ऐसे ही बैठे थे और मम्मी ने अचानक से पिज्जा पार्टी दे दी, खत्म। ओके, सब कुछ छोड़ के फुल इम्पैक्ट, फुल इम्पैक्ट। समझ गया? तो हमारे बीच में जब पीछे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो हमारा फुल इम्पैक्ट होता है, पर पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लेस इम्पैक्ट है। इससे समझा क्या? यू नो फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर बेटा। इससे समझा क्या? मुझे बताओ, अगर ये प्रेशर ऑफ आइडियल है, ये प्रेशर ऑफ रियल है, विच वन विल बी ग्रेटर, आइडियल और रियल? विच वन इज ग्रेटर, आइडियल और रियल? आइडियल विल बी ग्रेटर। ओके, ये आपको समझना था कि आइडियल विल बी ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से समझना। ओके ओके, okay, Harsh is asking what is the reason for the presence and absence of force of attraction? ओके वत्सल, मैं आपकी वो सेंटेंस पढ़ नहीं रहा हूँ। व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ओके हर्ष, उसका रीजन ये था कि हमने बोला ना हर्ष की आइडियल गैस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर्ष बेटा देखो, हमने बुक में कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा, देयर आर नो इंटरएक्टिव फोर्सेस इन द आइडियल गैस, बट इन रियल गैसेस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई राइट हर्ष? यू गॉट इट? श्योर? चलो ओके ओके, अब है ना हर्ष हम यहाँ पे आ जाते हैं, हर्ष हम यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अब बेटा ना दो चीज है यहाँ पे, जब हम प्रेशर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ना दो प्रेशर की बातें होती है। देखो अभी रियल गैसेस के हम प्रेशर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं बिकॉज हमें करेक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे ना दो चीज की प्रेशर है, मीन्स यहाँ पे ना फोर्स इंटरनल भी है, फोर्स ये सबके बीच में इंटरनल भी है, और फोर्स है ना यहाँ पे भी आएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है हर्ष, पीछे से हम लोग भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करें, है ना? या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, है ना हर्ष? एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो हो सकता है। क्यों एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है हर्ष? ओके, उसको कंप्रेस्ड करना है, उसको कंप्रेस्ड करना है। और ना वही वाला मेरा फेवरेट एग्जांपल, बेंच पे तीन जन बैठे हैं, मैं उसको पीछे से धक्का मार, पीछे से नहीं साइड से ना मैं धक्का मार रहा हूँ, तो वो तीनों तो इंटरनली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही, वो लोग तो एक दूसरे को प्रेशराइज कर ही रहे थे, पर साथ में मेरा भी एक एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। सो एक्चुअली जो प्रेशर ऑफ गैस है, एक्चुअली जो प्रेशर ऑफ गैस है, मीन्स आप सोचो, सब लोग सोचो, सिलेंडर है हमारा घर पे, एलपीजी सिलेंडर, तो वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर में अंदर भी प्रेशर है, गैस के बीच में अंदर भी प्रेशर है, और वो गैस को बाहर डालने के लिए मैं उसको प्रेशराइज कर रहा हूँ तो बाहर आ रहा है ना, मैं प्रेशर थोड़ा रिलीज कर रहा हूँ, तो बाहर से थोड़ा प्रेशर रिलीज करके तो वो गैस बाहर आ रहा है। मीन्स एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गैस, actually the pressure of gas is made up of two things, is made up of external pressure plus internal pressure। करेक्ट? प्रेशर एक्सटर्नल को हम लोग है ना प्रेशर ऑफ गैस ऐसे पी ले लेते हैं, पर व्हाट इज दिस इंटरनल प्रेशर? तो इंटरनल प्रेशर को हम कैसे लेंगे? तो आप मुझे बताओ इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर के लिए मुझे ये जो रिजिड स्फीयर है जिसको मैं अभी ए कंसिडर कर रहा हूँ, ये रिजिड स्फीयर का मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए? पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन का, सब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सॉरी मैं अभी आपका चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पहले सुन लो ये क्या है। ओके, फिर हम लोग एक साथ आपके डाउट्स लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ए है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है, ये एक रिजिड स्फीयर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है ना? ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है,
ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो अभी क्या होगा, ये इसके साथ है ना, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। चलो अब इसको ऐसे पकड़ो, ओके। मैं ये समझा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब मैं ना बेटा थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये ना आपका वॉल है, ओके, ये ना वॉल है, ओके। ये वो पार्टिकल है, ए पार्टिकल है जिसका ना वॉल के साथ कोलाइड हो करना है, ओके। और ये पार्टिकल के पीछे ना 3 गुंडे लोग हैं, ये 3 गुंडे लोग इसके पीछे है, ओके। ये 3 गुंडे लोग क्या करेंगे, इसको पीछे से ना अट्रैक्ट करेंगे, am I right? पीछे से ना इसको पुल करने की ट्राई करेंगे, पुल करने की ट्राई करेंगे, पुल करने की ट्राई करेंगे। सो दिस इज बी पार्टिकल्स, दिस ऑल आर बी पार्टिकल्स, ओके। सो व्हाट इज देयर, यहाँ पे जो ए है ना, ये ए जो है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो n/v था, ओके। तो ये बी का भी तो n/v होगा ना, ये सब भी तो पार्टिकल्स है ना, ये n/v होगा, ओके। और देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये ए कभी ना कभी v बनेगा और ये b कभी ना कभी a बनेगा, मीन्स हीरो कभी गुंडा बनेगा, गुंडा कभी हीरो बनेगा। कैसे पता है, क्यों पता है, बिकॉज ये सब है ना रैंडम मोशन में है, यू गेटिंग दिस अंश। अगर रैंडम मोशन है तो कभी ए है ना ऐसे रैंडम घूम घूम के यहाँ आएगा और बी है ना वॉल के नजदीक आ जाएगा, समझ रहे हैं, ओके। कभी वो बी यहाँ पे आएगा तो सपोज अगर ये या ये मिडिल वाला पार्टिकल आ जाएगा या ऊपर वाला पार्टिकल आ जाएगा, पर ये बी पार्टिकल कभी आगे होगा तो कभी ए आगे होगा, whomsoever it is। पर बेटा ये जो पार्टिकल है, मीन्स यहाँ पे 2 टाइप के पार्टिकल्स हो गए, एम आई राइट पूजा, 2 टाइप के पार्टिकल्स, एक जिसको ना वॉल के साथ कोलॉइड होना है और दूसरा क्या है जो वॉल के साथ कोलॉइड होने जा रहा है उसको पीछे से उसको पुल कर रहा है, पीछे से उसको पुल कर रहा है। सो दोनों का क्या है, n/v है, ओके। सो वो लोग क्या बोलते हैं, अगर दोनों का n/v है, सो बेटा व्हाट वी हैव लर्नड, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो डेंसिटी है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। सो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये n/v, और ये n/v का हमारा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये n² अपॉन v² हो जाएगा। मीन्स हमें ये समझ में आया, जो इंटरनल प्रेशर है ना, ये इंटरनल प्रेशर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स के वजह से, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स की वजह से, एक ए जो कोलाइड होने जा रहा है और दूसरे ऐसे पार्टिकल्स जो उसको कोलिजन करने से, उसका फुल इम्पैक्ट करने से उसको रोक रहे हैं, जो पीछे से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अंडरस्टूड, ओके। ए और बी के कारण तो हमें क्या मिलेगा, n²/v²। और ये इन शॉर्ट ये प्रेशर इंटरनल, लिसन लिसन लिसन, ये प्रेशर इंटरनल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। और अगर पूजा मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल के इक्वल टू रखा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट का नाम है वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ओके, समझा। और हमारे बुक में पूजा ये डायरेक्ट दिया है, एनसीईआरटी बुक में, उनको लगता है बच्चों स्मार्ट है कुछ भी पढ़ लेंगे, ओके, डायरेक्ट दिया है, समझा। इट इज सो डेप्थ, इट इज सो डेप्थ कि वो लोग कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, ओके। सो फाइनली रुको, बिफोर आई टेक योर डाउट्स, फाइनली what is the pressure of gas in the real gas, what is the pressure of gas in the real gas, one is this external pressure, okay, जो ज्यादा भी होगा कम भी होगा, यू नो, हम लोग बलून को ब्लो करते टाई करते बर्थडे पार्टी के लिए, तो क्या बलून के ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बलून के अंदर इंटरनल प्रेशर भी तो है, जो क्या वो सब गैस मॉलिक्यूल्स में आएगा। मेरे घर पे एलपीजी सिलेंडर है, वो एलपीजी सिलेंडर का बाहर भी तो गैस प्रेशर कर रहा है, बाहर के मॉलिक्यूल्स भी एलपीजी सिलेंडर पे प्रेशराइज कर रहे हैं और अंदर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशराइज कर रहे हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस के अंदर तो मुझे दोनों कंसिडर करना चाहिए, इंटरनल भी करना चाहिए, एक्सटर्नल भी कंसिडर करना चाहिए फॉर द रियल गैस। सो एक्सटर्नल के लिए आई एम टेकिंग पी, बट इंटरनल के लिए दे आर वेरी स्पेसिफिक, इट इज n²/v²। आपको ऐसा बोला है एनसीईआरटी बुक में, लर्न करो, और मुझे नहीं चाहिए था कि आप लर्न करो, आप इसको है ना समझ के करो, डिड यू गेट। पर इसमें ना एक लॉजिक है, सुनो सुनो, इसमें है ना एक लॉजिक है बेटा, ओके। जब भी हम ये पढ़ते हैं ना, जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें ना बेटा 3 महीने के बाद है ना लॉजिक भूल जाते हैं। तो आपको ये एडिशन दिख रहा है, तो वंश हम लोग है ना वहां पे जाके जेई में अप्लाई करके आता है, हाँ प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ये ऐड हो रहा है, नहीं ये ऐड हो रहा है, पर मैंने यहाँ पे क्या समझा, लेस इम्पैक्ट होगा बिकॉज पीछे से गुंडे लोग हमें खींच रहे, भी दूसरे पार्टिकल्स इनको खींच रहे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। आपको ये भूलना नहीं है, एवरी टाइम भूलना नहीं है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन्स प्रेशर ऑफ रियल
विल बी ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ आइडियल, भले उसके फॉर्मूला में हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। वो ऐड क्या है, वो बेटा ये आइडियल रियल का एडिशन नहीं है, समझ जाओ ये बात, ये आइडियल और रियल का कुछ एडिशन नहीं है, ये सिर्फ हम लोग रियल गैस का ही प्रेशर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल करके निकाल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में रॉन्ग सिखाया है, वो लोग बोलते हैं ये ना, ये जो प्रेशर है ना वो आपका आइडियल गैस का प्रेशर है, कुछ भी बोल रहे हैं। आइडियल गैस का प्रेशर कैसे हो सकता है, आइडियल गैस में तो बेटा प्रेशराइज होगा ही नहीं, एक्चुअली में उसका फुल इम्पैक्ट इतना आएगा ही, मीन्स उसमें बेटा हम लोग ज्यादा प्रेशर काउंट कर नहीं सकते, पॉइंट इज दैट। पर वो लोग बेटा, वो लोग का जो एक्सप्लेनेशन वो रॉन्ग है, द मेन पार्ट इज बेटा ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ओके, सो फाइनली यू गॉट प्रेशर करेक्शन। रुको रुको रुको, मैं आपको ये प्रेशर करेक्शन में ओके, बिफोर यू टेल मी योर डाउट्स, चलो 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 चलो, पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले आप मुझे पूछ लो यहाँ पे। ओके, चैतन्य का डाउट है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी सेम, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट। अरे चैतन्य, चैतन्य आप सोचो, चैतन्य फरेरो रोशर के डब्बे में हर एक जो फरेरो रोशर का लड्डू है, क्या वो स्फीयर सेम है, कि आर दे ऑफ डिफरेंट साइज और इक्वल इन साइज, और दे आर हैविंग डिफरेंट साइज और दे आर हैविंग सेम साइज? सेम साइज बेटा, सेम साइज। सो डोंट यू थिंक बेटा ये जो कंटेनर है उसमें क्या रात सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ऐसे फिल करने वाले? नहीं, ये कंटेनर में सिर्फ एक सिंगल गैस है, O2 गैस। तो ये ए भी O2 गैस ही है बेटा, ये ए भी O2 गैस ही है, ये बी भी O2 गैस ही है। बट क्या है पता है, ये O2 गैस है ना वॉल के नजदीक है, विच इज अबाउट टू कोलॉइड टू द वॉल, और पीछे वाला O2 गैस क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। और वो पुल कौन सा होगा चैतन्य? वैंडरवॉल्स फोर्स। ये पुलिंग कौन सा होगा, ये बी का, एक O2 गैस दूसरे O2 गैस पे वैंडरवॉल्स फोर्स होगा। ओके, तो हम यहाँ पे डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स नहीं डाल रहे चैतन्य, सेम गैस मॉलिक्यूल्स है जो अंदर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप सोचो, अगर वो एक ही गैस मॉलिक्यूल है, मीन्स ए का भी साइज सेम है बेटा, बी का भी साइज सेम है। ओके, तो मुझे वो रिजिड स्फीयर, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर किसके वजह से? प्रेशर इसके भी वजह से है, और प्रेशर इसके ये तीनों की वजह से भी है। तो इनका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इनका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर मिलेगा। Did you get चैतन्य? समझा? आप उसको डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स इमेजिन कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल में मॉलिक्यूल्स के कारण an स्क्वायर v स्क्वायर ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या जैनम यू आर राइट। वंश पी ग्रेटर देन पी कैन यू रिपीट? मैं लीव हो गया था। ओके ओके, मैं रिपीट करूँ? या सिद्धेश यू आर राइट, यू आर राइट, force exerted per unit volume, यू आर राइट। ओके, 22.4 लीटर बेटा छोड़ दो, गृहांक वो भी छोड़ दो, वो बेटा ओवरऑल जब 1 मोल होगा ना, वो बेटा यहाँ पे वो 1 मोल से हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, गृहांक 1 मोल होगा वो 22.4 होगा, वो बात कहानी अलग है। हमने बताया नहीं कि n नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ओके, n नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। मैं फिर से एक स्टूडेंट के लिए रिपीट करता हूँ, वंश के लिए रिपीट कर रहा हूँ। वंश मेरा ये पार्ट क्या था? वंश ये आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स है। सो क्या आइडियल गैस मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल जब इसके वॉल के ऊपर इम्पैक्ट करने जाता है, ये आइडियल गैस मॉलिक्यूल जब ये वॉल के ऊपर इम्पैक्ट करने आता है, तो क्या इसको पीछे से कोई मॉलिक्यूल पुल कर रहा है? कोई पुल कर रहा है? नहीं, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो FOA, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल तुरंत फुल इम्पैक्ट करेगा, फुल इम्पैक्ट करेगा इसके ऊपर। ओके, पर बेटा रियल गैस में ये एक मॉलिक्यूल जब है ना वॉल के साथ कोलाइड होने जा रहा है, तो उसको पीछे से ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, फिर उसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स बेटा ये जो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया कि ये मॉलिक्यूल को ये सब जगह से अट्रैक्शन मिल रहा है, तो क्या ये मॉलिक्यूल फुल इम्पैक्ट करेगा? नहीं, ये क्या करेगा? लेस इम्पैक्ट करेगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेस इम्पैक्ट करेगा मीन्स रियल गैस का प्रेशर विल बी लेसर देन आइडियल गैस, है ना। ये आइडियल गैस का बेटा फुल इम्पैक्ट वाला, रियल गैस का लेस इम्पैक्ट वाला। इट मीन्स व्हाट? रियल गैस का प्रेशर इज लेस देन द आइडियल गैस। समझा? ओके, आइडियल गैस में एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए नहीं है बेटा, वहां पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज बेटा आप सोचो ना, आप लॉजिकली भी सोचो, अगर सब लोग बोलेंगे सर आइडियल गैस में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो, वहां पे भी आना चाहिए, आना चाहिए, पर क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इनके बीच में कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है इनके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है ही नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
तो बाहर का प्रेशर कंसिडर करके फायदा क्या, फायदा क्या, यू गेटिंग दिस? इससे वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे, ओके समझा? ओके और किसी का डाउट? सॉरी मैं चैट बॉक्स इतना फास्ट जा रहा है, आई कैन नॉट रीड एवरीथिंग, एक मिनट, हाँ एक, लेट मी रीड इट। रियल गैस में एक्सटर्नल जीरो हो सकता है या जीरो हो सकता है, एक्सटर्नल जीरो नहीं हो सकता। हेलो वंश, आप वैक्यूम में रख दोगे, एक्सटर्नल जीरो होगा तो वैक्यूम में रख दोगे। राइट नाउ भी वंश हम जहाँ घर पे बैठे तो आपके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मेरे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर आप और मैं वैक्यूम में चले गए तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, पर वैक्यूम में नहीं जा रहे बेटा, ओके। इन रियल गैस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से एफओए ज्यादा हो जाएगा। यस ध्रुव यू आर राइट, जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर करूंगा उतना एफओए बढ़ता जाएगा। यू आर राइट, यू आर राइट, ओके। इससे हम कंप्रेसिबिलिटी को कनेक्ट करेंगे। सो जस्ट वंस यू रिपीट द एन स्क्वायर वी स्क्वायर एज वेल, थोड़ा कंफ्यूजिंग, या ओके। अब मैं ना वापस से ग्रुआंग, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ग्रुआंग। इसके अंदर ना बेटा O2 मॉलिक्यूल थी। लेट अस इमेजिन, जो मैंने अभी इसको एक स्टूडेंट को मैंने रिपीट किया, ग्रुआंग इसके अंदर ना सिर्फ O2 मॉलिक्यूल थी, okay, all molecules are O2 O2 O2, but Gruhan, the one which is nearby to the wall, it is a type of O2 molecule, but one who is behind this A, they all are B type of O2 molecule, which I have drawn it here. Am I right, Gruhan? A type of O2 molecule and B type of O2 molecule, but don't you think their size would be same, Gruhan? Their size would be same because they both are O2 only, the size would be same, okay. And what I said, they are moving in a random motion, then there is a possibility sometimes the B will become A and the A will become B. Sometimes this molecule might reach near to the wall, and this molecule while moving randomly it might come behind the B. पॉसिबल हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, पर जो ए, तो ए टाइप के मॉलिक्यूल जो वॉल के नजदीक है उनका कॉन्सेंट्रेशन बेटा n/v होगा, और जो बी मॉलिक्यूल जो ये ए के पीछे है ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन n/v होगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, दैट पर यूनिट एरिया के हिसाब से, ओके। तो अगर बेटा ये n/v होगा, तो कहना इसे मेरा इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ए के वजह से भी है, बी के वजह से भी है। ए जो इसको कोलॉइड होने वाला है वो ये प्रेशर क्रिएट करेगा, बी जो उसको पुल करने वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो ये प्रेशर क्रिएट करेगा। सो ओवरऑल इंटरनल प्रेशर क्या है, n/v इंटू n/v, ये ए के लिए ये बी के लिए। अब समझा ग्रुआंग? तो प्रेशर इंटरनल इज व्हाट, n स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल टू डालू तो a इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। समझ में आ गया? या उसको हम एक्सटर्नल नहीं बोल सकते, ओके बेटा। 6 इंटू 10⁻23 को काउंट किया है वत्सल, n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल में कितने होते हैं वत्सल बेटा, कितने होते हैं? 6 इंटू 10⁻23। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना बेटा, कर रहा हूँ। और मैंने बोल दिया वत्सल ये O2 मॉलिक्यूल, मैंने बोल दिया अभी 5 मोल है, तो डोंट यू थिंक मैं यहाँ पे n के जगह पे 5 रखूंगा, रखूंगा ना 5? तो इन डोंट यू थिंक आई एम कंसिडरिंग 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23? सो आई एम कंसिडरिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स। मैं हर एक मॉलिक्यूल का बेटा वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है एक का ही कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड वंश आपका ऐसा रियल गैस में एडिशन भी, एडिशन है फिर भी एडिड ज्यादा होगा। यस वंश यू आर राइट, ओके। सबको ये समझा? अभी वंश ने जो डायलॉग बताया कि सर रियल गैस का बेटा एडिशन है फिर भी रियल गैस का प्रेशर कम है, सबको समझा? किसका हो गया था लॉग आउट, समझा बेटा आपको? रियल गैस का वॉल्यूम, रियल गैस का प्रेशर कम है, वाई? बिकॉज को पीछे से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। यू गेटिंग दिस? ओके चलो, ओके। सो फाइनली आपको पता चल गया। फिर से हम लोग ये करें एक और चीज, यहाँ पे भी पूछेंगे, जैसे पता है वो यूनिट ऑफ डी पूछा था, तो वैसे ये लोग यूनिट ऑफ क्या पूछेंगे, ए पूछेंगे। हमें क्या निकाला, प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, पर हम कौन सी क्वांटिटी को ऐड, हम कौन सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जो दोनों के डायमेंशन सेम हो गए तो। सो डोंट यू थिंक बेटा ये वाला पार्ट भी क्या है, प्रेशर ही है। ऑब्वियसली वो प्रेशर से हमने कनेक्ट किया ना, प्रेशर ही है। तो अगर वो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है विच इज नथिंग बट प्रेशर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज ए, प्रेशर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का यूनिट लीटर स्क्वायर, मोल का यूनिट कैन आई राइट डायरेक्टली मोल रेज टू -2। पक्का समझे? मोल रेज टू -2 कि मैं नीचे लिख के बताऊं? मोल स्क्वायर। सो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली? एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। समझा? ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ ए। ए क्या है फाइनली? ए क्या मिला? एक मिनट, ए क्या है? ए हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना राज पटेल, पर वो ए है क्या एग्जैक्टली? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना एवरीबॉडी, इंटरएक्टिव फोर्स ही है ना बेटा, सब कुछ इंटरनल प्रेशर की बातें कर रहे हैं। कांस्टेंट है वंश, पर वो कांस्टेंट बेटा इंटरनल गैस मॉलिक्यूल्स का ही है, पर वो भी इंटरएक्टिव फोर्स ही होगा ना, इट विल बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओनली ना, इंटरएक्टिव फोर्स ही होगा ना। तो बेटा ए ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा ए का वैल्यू इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीरियोडिक टेबल से पता चला इट इज एटॉमिक साइज। ओके लाइक फॉर एग्जांपल मुझे बताओ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसा पूछा एग्जाम में, जेई एग्जाम में, किसका ए वैल्यू ज्यादा है? किसका ज्यादा है? जेनॉन का। जेनॉन का ना, यू हैव लर्न ना, ये सब में कौन सा फोर्स होता है? वैंडर वॉल फोर्स। हमने क्या पढ़ा बेटा वैंडर वॉल फोर्स के बारे में? एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। जितना बड़ा साइज उतना वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसका ए भी क्या है? ज्यादा। ओके चलो इसमें बताओ F2 Cl2 Br2 I2 किसका ज्यादा होगा? I2 होगा। ओके बट नमन अग्रवाल ये दोनों एग्जाम्पल ही रॉन्ग है। क्यों? क्यों रॉन्ग है? बिकॉज I2 इज इन अ सॉलिड स्टेट, Br2 इज इन अ लिक्विड स्टेट, और ये वैंडर वॉल तो गैस के बारे में है, तो एग्जाम्पल ही गलत दे दिया राज सर ने। तो क्या आएगा? F2Cl2 ही आएगा। तो किसका ज्यादा होगा? Cl2 का ज्यादा होगा, है ना? ओके नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट सुनो सुनो सुनो, मजा आएगा। SO2 है, N2 है, O2 है। ओके अब SO2, क्या SO2 नॉन पोलर है? क्या SO2 नॉन पोलर है? SO2 नॉन पोलर है नहीं, उसके अंदर पोलैरिटी है, थोड़ी सी पोलैरिटी है बेटा, वो पोलर है। ओके हम लोग एक और ले लेते हैं CO2 SO2। ये रियल जेई क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल है ना बेटा रियल जेई क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। ओके आपने क्या बोला? चलो ये नॉन पोलर है, परफेक्ट, ये नॉन पोलर है, परफेक्ट, ये नॉन पोलर है, परफेक्ट। इसके ऊपर हम कहाँ जाएंगे? एटॉमिक साइज पे जाएंगे। एटॉमिक साइज पे जाएंगे मतलब हम लोग ना इसके मोलार मास पे जाने का, डायरेक्ट इसके मोलार मास पे जाने का। पर SO2 पोलर है, तो पोलर मतलब कौन सा होगा उसमें अट्रैक्शन? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो मुझे बताओ कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर, डाइपोल डाइपोल कि ये वैंडरवॉल? ये सबके बीच में क्या होगा? वैंडरवॉल होगा। हु इज ग्रेटर फोर्स? नीरव सर ने सिखाया है, क्या होगा? डाइपोल डाइपोल होगा। तो मैं सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? SO2 का। तो माय फर्स्ट आंसर विल बी SO2। माय फर्स्ट आंसर विल बी SO2। और अभी ये तीनों में डिसाइड कौन करेगा? अब आप सोचोगे सर इसमें एटॉमिक साइज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम मोलार मास पे जाएंगे, है ना? हम लोग बोलते थे ये ज्यादा हैवियर है, ये ज्यादा हैवियर है तो इसकी वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगी, बड़ा साइज होगा, है ना? तो आप है ना इसके मॉलिक्यूलर वेट पे जाओ। आपको पता है CO2 44 है, आपको पता है N2 28 है, O2 क्या है? 32 है। तो कौन ज्यादा है? CO2 ज्यादा है। फिर O2। सॉरी आई एम अनेबल टू राइट, प्रॉब्लम है। ओके आप रुकना, प्लीज जाना मत, भले एक का एक 5 एक 10 होने दो,
बट बेटा ये कनेक्ट करके खत्म करके जाओ। ओके, एक और क्वेश्चन उन्होंने जेई में पूछा था, मस्त क्वेश्चन। ओके, ये आपका यहाँ पे। ओके, मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। ओके ओके, O2 इज स्मॉलर, बेटा साइज नहीं है यहाँ पे, वहां पे बेटा O2 इज स्मॉलर, O2 इज स्मॉलर है, पर बेटा हम लोग वहां पे ना एटॉमिक साइज, यहाँ पे ना वैंडरवॉल्स की वजह से भी हो सकता है, सॉरी वैंडरवॉल्स फोर्स नहीं, सॉरी मोलार मास की वजह से ही होगा बेटा। यू वांटेड टू मींस यू ऑल आर टेलिंग दैट O2 का वैंडरवॉल्स फोर्स N2 से कम है ना, एज पर द साइज, बिकॉज हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का साइज कम है। हम लोग मोलार मास पे नहीं जाते, पहले साइज देखेंगे। यू आर राइट, राइट। चलो, आपने जो लिखा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ गया। ओके, अ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा, ये ए के लिए इट इज N2, it is O2, it is CH4, okay, and it is ammonia, ammonia, okay। तो मुझे बताओ, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। व्हाट अबाउट मीथेन, नॉन पोलर है, तो क्या अमोनिया भी नॉन पोलर होगा? नहीं, अमोनिया में तो क्या है, इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स किस में, अमोनिया में आएगा, सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स अमोनिया में आएगा। ओके, अमोनिया के बाद हम किधर जाएंगे? अब देखो N2O2 और मीथेन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है बेटा, N2O2 का आपने साइज से बता दिया, पर मीथेन के लिए ना आपको इस सबके मोलार मास को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा 16 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 28 है, सबसे कम मीथेन का ही है ना, तो मीथेन है ना बेटा सबसे एंड में आएगा, तो मीथेन है ना बेटा सबसे एंड में आएगा। ओके, फिर क्या आएगा, O2 का क्या है, साइज छोटा है, और फिर क्या आएगा, N2 आएगा। समझ रहा है? पक्का? ओके, थोड़ा हम लोग है ना इसको और डिस्कस करेंगे। ओके, बट फाइनली डिड यू गेट, मैंने दोनों करेक्शन बता दिया। ओके, माय फाइनल स्टोरी, माय फाइनल स्टोरी, व्हाट इज आइडियल गैस, व्हाट इज आइडियल गैस का इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू साइज एंड मास में साइज को ज्यादा प्रेफर करेंगे, साइज को ज्यादा प्रेफर करेंगे। मीथेन बल्कि साइज है सिद्धेश, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मीथेन के अंदर भी बेटा वैंडरवॉल्स फोर्स होगा, मीथेन मीथेन के बीच में, मीथेन मीथेन के बीच में। ओके, लाइक अगर मैंने देखो ये पता है आपको, मैं आपको बल्कि साइज का दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये क्या है बेटा, एन ब्यूटेन है, ये क्या है, आइसोब्यूटेन है। तो मुझे बताओ, ये दोनों में एक ही वैल्यू किसकी ज्यादा, 1 या 2, है ना। आपका वैंडरवॉल्स फोर्स किस में ज्यादा होगा, वैंडरवॉल्स फोर्स किस में ज्यादा, दोनों में वैंडरवॉल्स फोर्स ही है। तो वैंडरवॉल्स फोर्स किसका ज्यादा होता है, जिसका साइज ज्यादा है उसका वैंडरवॉल्स फोर्स ज्यादा है ना। सो विच वन इज अ बिगर इन साइज, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन इज अ बिगर इन साइज, सो ए वैल्यू विल बी 1 विल बी ग्रेटर देन 2। ओके, मींस आपका सबसे पहला प्रेफरेंस निर्देश क्या होगा, साइज के ऊपर होगा, है ना। यू गेटिंग इट? ओके, तो इसमें बेटा कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, बिकॉज अभी उनके पास पूरा केमिस्ट्री खुल गया, पूरे केमिस्ट्री के साइज को कंपेयर कर देते ए बी में, दैट्स जेई क्वेश्चन। ओके ओके, NH3 के बाद N2 कैसे आया, बिकॉज बेटा साइज वाइज N2 बड़ा है तन्वी, नाइट्रोजन इज बिगर देन ऑक्सीजन इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, या ओके। PV इज इक्वल टू NRTA, ये आइडियल गैस है, पर व्हाट इज अभी रियल गैस का इक्वेशन, क्या है रियल गैस का इक्वेशन, हमारा P का हमने क्या करेक्शन किया, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एंड V माइनस NB दैट इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वैंडर वॉल इक्वेशन, वैंडर वॉल इक्वेशन।
ओके, एंड ये आपका प्रेशर करेक्शन टर्म, ये आपका वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ओके, एक चीज पूछूं मैं राज, यहाँ पे लर्न करने के लिए, ये मैंने ऐसे लर्न किया है, आपने प्रेशर करेक्शन टर्म में क्या समझा? प्रेशर ऑफ आइडियल इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ रियल, है ना? रियल का प्रेशर कम ही। सेम यहाँ पे भी यही कंसिडर आएगा वॉल्यूम के लिए राज, वॉल्यूम ऑफ आइडियल विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल ना, बिकॉज छोटू छोटू पार्टिकल है आइडियल के, टाइनी पार्टिकल्स जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, है ना? छोटू छोटू पार्टिकल है, इनके पास ज्यादा स्पेस है घूमने के लिए, छोटू छोटू पार्टिकल के लिए इनके पास कम स्पेस है। इट मीन्स बेटा मैंने ये लर्न कर लिया, पूरे वैंडरवॉल इक्वेशन में प्रेशर भी आइडियल से कम है, वॉल्यूम भी आइडियल से कम है। समझ में आया? ओके, मीन्स दोनों करेक्शन में प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है। ओके, पर दोनों की कहानी, वॉल्यूम क्यों कम है, प्रेशर क्यों कम है, उसकी कहानी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। किसका? रियल का कम है बेटा, आइडियल का ज्यादा है। मजा आया? मजा आया? ओके, अब बेटा है ना, मैंने आपके लिए ना टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, आप लोग है ना बेटा एक बार टेक्स्ट बुक लैंग्वेज पढ़ो, मस्त में आप कंफ्यूजन पे जाओगे, मस्त कंफ्यूजन होगा। ओके, जाओ कंफ्यूजन करो, कंफ्यूजन करो, दिमाग लगाओ, और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आपका कंफ्यूजन बताओ। ओके, सब लोग क्या करना बताए? दो चीजें करना। ओके, ये जो मैंने आपको रियल गैस का ना सब डेविएशन बताया, ये बेटा ये डेविएशन के ये दो रीजन है ना, मस्त रीजन है, ये पढ़ो, ये रीजंस पढ़ो, मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ कनेक्ट करो, यहाँ तक पढ़ना है। ओके, यहाँ तक पढ़ना है। फिर बेटा मेन पार्ट आपको, मेन है ना एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक में आपका है ना ये क्वेश्चन से स्टार्ट करो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो। कौन सा पेज नंबर है आप देख लेना। ओके, आई डोंट हैव पेज नंबर, 150 है मेरे एनसीईआरटी पीडीएफ, ये थोड़ा जूना पीडीएफ, आई डोंट नो, आप ढूंढ लेना कहाँ पे। ओके, और ये पूरा पेज पढ़ो, ये पूरा पेज पढ़ो, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मत पढ़ना, दैट आई टीच यू, आई टीच यू, ये ना इसका बेटा आगे का वर्जन, मजा आएगा। ये वैंडरवॉल के बाद ही कंप्रेसिबिलिटी पढ़ना चाहिए। ओके, पर आप लोग है ना बेटा यहाँ तक पढ़ के रखो। ओके, फिर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना मैं आपके लिए डिराइव करता हूँ कैसे होता है। ओके, बट रिमेंबर इट इज थियोरिटिकल, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। उन्होंने यहाँ पे रिपल्शन फोर्सेस के बारे में भी दिया कि वो मॉलिक्यूल्स जब बेटा नियर बाय आएंगे ना रियल गैसेस के, तो बेटा वो एक दूसरे के है ना, एक दूसरे के अंदर ना ओवरलैप नहीं होगी, यू नो, ओवरलैप नहीं होगा। मीन्स है ना, मैं वो बेंच पे जो बैठा हुआ जो लड़का है, मैं उसको जोर से बाहर से धक्का मार रहा हूँ, तो लोग एक दूसरे के गोदी में जाके नहीं बैठ जाते, है ना, एक दूसरे की गोदी में जाके नहीं बैठ जाते। इवन आपने ये भी देखा है, मैं जब है ना वो चॉकलेट के डब्बे को ऐसा क्रश करता हूँ, तो मेरा चॉकलेट टूट जाती है, और वो लोग एक दूसरे के ऊपर जाके नहीं बैठ सकते। यू गेटिंग दिस? तो ओवरलैप नहीं होगा, तो बेटा देयर वुड बी, मीन्स वो लोग है ना क्रश हो गया, मीन्स यहाँ पे एक लड़का दूसरे लड़के के बाजू में होगा, तो क्या करेगा वो जो बाजू में होगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा। मीन्स जैसे मैं उसको धक्का मार रहा हूँ, तो वो लोग तीनों मिलकर क्या करेंगे, मुझे वहां से रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा, मीन्स वो लोग मुझे ना ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारेंगे, पर दैट रिपल्शन फोर्स विल बी वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। उसका कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा, वो टाइम पास सेंटेंस है, सच बोल रहा हूँ, वो सब टाइम पास सेंटेंस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप आगे आगे पढ़ना, वो वॉल्यूम के साथ वो लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप देखो। ओके, और मैंने जो आपको बताया ना, वो थोड़ा है ना लेवल हायर है, एनसीईआरटी का भी हायर लेवल है, पर दिस आई पर्पसफुली टीच टू गेट द रियल आइडिया ऑफ वैंडरवॉल। ओके, मैं ये पूरा आपको है ना, ये पूरा पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप पूरा घर पे बैठ के लिख लो, घर पे बैठ के लिख लो। ओके, लिखो या ओके। और जिसको ऐसा लगा है कि भाई लेक्चर सर मेरा रिकॉर्डिंग में, सॉरी मेरे लेक्चर में ये प्रॉब्लम था, सॉरी व्हाट वी से, आपका नेटवर्क इशू था, सो आई विल सेंड इट टू यू। मैं ग्रुप पे डाल दूं, सबको चाहिए क्या? डाल दूं? डाल दूं? चलो, आई विल पुट इट अप, गिव मी हाफ एन आवर, आई विल पुट इनटू द ग्रुप। आप फिर से सुनो, टेक्स्ट बुक के साथ कनेक्ट करो। ओके, कनेक्ट करो। ओके, नेक्स्ट संडे के टेस्ट में, केमिस्ट्री टेस्ट में ये आएगा, राज सर ये वैंडरवॉल इक्वेशन में से क्वेश्चन थियरी वाला पुटअप करेंगे, जेई में भी पूछते हैं। ओके, हम पीआई वॉल्यूम में भी ऐसा क्वेश्चन देंगे, तो थोड़ा अच्छे से समझो। कुछ भी डाउट है केमिस्ट्री बुक में, अभी कुछ भी नहीं समझा वो लाइंस में, तो मुझे बताओ। ओके, ओके, बट डू रीड टुडे एंड डू वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। पता है अभी जो मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए,
मैंने अभी जितने एग्जांपल्स दिए, एक मिनट, मैंने अभी जितने एग्जांपल्स दिए वो एक भी एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में नहीं है। वो जो जेई का क्वेश्चन मैंने बताया ना, वो एक भी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ओके, वो अब बेटा पीआई वॉल्यूम पे जाना, पीआई वॉल्यूम पे जाना एंड गो टू दिस पेज ऑफ पीआई वॉल्यूम, सी दिस। ओके, आई डोंट नो विच पेज नंबर इट इज, ये वाला पेज। ओके, ये प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, डू रीड दिस प्रॉपर्ली। ओके, और हमारा जो जेई का क्वेश्चन था ना वो ये था, मैंने आपको ये प्रूव किया, चेक करो ये प्रूव किया। ओके, और मैंने आपको बी का ये प्रूव किया, हाँ ये प्रूव किया। ओके, और सब लोग है ना घर पे ये सोचो, हाँ ये एग्जाम्पल सोचो बेटा, ये एग्जाम्पल के बारे में सोचो। ओके सोचो, नहीं वो ग्राफ मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिद्धेश, सिद्धेश वो ग्राफ का ना कुछ भी रिलेशन नहीं है कंटेंट के साथ। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे सिद्धेश ना, ये सब गैस को कंसिडर करेंगे। आई टेल यू द आंसर, H2 हीलियम का क्यों ज्यादा आ रहा है, क्यों ये CO2 का कम आ रहा है, व्हाट्स प्रॉब्लम इन द CO2, H2 हीलियम में क्या है, ये हम करेंगे बेटा, अच्छे से करेंगे। ओके, आप बेटा कंटेंट पे फोकस करना, और स्पेशली बेटा ये सीरीज के बारे में सोचो घर पे बैठ के, क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्यों इंक्रीज हो रहा है, थिंक ओवर इट। ओके, एंड देन विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीबॉडी। सर, हाँ सर मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि डेंसिटी ऑफ रियल गैस आइडियल गैस से ज्यादा ही होगा। हाँ, ओके सर, ठीक है, यस, थैंक यू। बिकॉज डेंसिटी ना ज्यादा मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम से ज्यादा। हाँ सर। तो मास अगर ज्यादा है, ऑब्वियसली हमने देखा वो रिजिड स्फीयर है ना, तो मास बेटा साइज भी बड़ा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा ओवरऑल। ओके, और आइडियल हाँ गैस बेटा वैसे भी इमेजिनरी है, तो उसकी हम डेंसिटी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आइडियल गैस का मोलार मास तो बता ही नहीं पाओगे, है ना, तो हाँ। आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, कितने प्रोटॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से, भी डोंट, कितने न्यूट्रॉन से नहीं पता। ओके, सो यूजुअली ये कंपैरिजन नहीं होगा। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्रेशर ऑफ रियल को कंपेयर करो, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ रियल को कंपेयर करो। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।